Ladies and gentlemen, a very good evening and thank you for tuning in to a brand new episode of The Nation Wants to Know. I'm Deepthi Sachdeva. This Maharashtra election, ladies and gentlemen, is going to be a test case. This is going to be a test case whether that entire attempt that has been put forward of the Congress to use the caste card, to divide the Hindus on the basis of caste, whether that works against what the BJP has attempted to do to unify the Hindus. And that is why what happens on these 288 seats possibly could set forward a new paradigm in Indian politics. See, because largely it's getting clear that the Congress wants to divide the Hindus. The Congress says, Jati bataiye, jitni abadi utna haq. So that is the Congress's game plan versus what the BJP wants to do is to unite the Hindus. So the Congress wants to divide the Hindus because then it helps them to create a winning formula. But then when they want to divide the Hindus, they also want to unite the Muslims. That is the charge today being leveled on the Congress. Now we have multiple responses that have come in from Congress netas who says Muslims must unite. सारे मुसलमानों को एक होना पड़ेगा और तभी भाजपा को आप हरा सकते हैं is what the Congress officially is saying. Now in my view there is nothing wrong. If on one side you have the BJP that goes out with a war cry saying कि कटेंगे तो बटेंगे, this in fact means that they want to unite the Hindus. The Congress is going after their own vote bank, which is the minorities. And that is why today you have leader after leader. When they vilify the Sanatan, they speak about आरक्षण कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल देगा, मोदी अगर मोदी को और ताकतवर बना दिया, is what the Congress still says. Versus what the BJP says, versus what the Prime Minister says, where he says, ek hai to safe hai. Listen in just to two responses that have come in from both sides before we also speak about this minority love of the Congress and how true that is and what is going to be at test when it also comes to that vote jihad angle in Maharashtra. हमें कांग्रेस के इस षड्यंत्र का शिकार नहीं होना है. हमें एकजुट रहना है. हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे. अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी, तो सबसे पहले क्या होगा? कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है समानता होनी चाहिए. इसमें लिखा है, इसमें लिखा है हर व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए. इसमें लिखा है समानता होनी चाहिए. इसमें लिखा है हिंदुस्तान की संस्थाएं हिंदुस्तान की जनता की संस्थाएं हैं, किसी एक व्यक्ति की नहीं है. तो पहला काम जाति जनगणना. दूसरा काम ये जो 50% का बना रखा है, रिजर्वेशन का लिमिट लगा रखा है, इसको तोड़ के हम अलग कर देंगे, परे कर देंगे. But this, remember, is just one layer to this entire story. There is a larger divisive pitch that the Congress has been practicing. You know, Muhammad Ali Jinnah has divided the country on the basis of religion. The Congress is also doing much the same, is the charge today leveled on the Congress. The Congress is not willing to accept the fact that it is this minority vote, this Musalman factor, the M factor, that they believe is the only and only trump card to win elections. Now, the next two responses you will hear is from the Union Home Minister Amit Shah, followed also by a response that has come in from the Telangana Chief Minister. Now this Chief Minister says कि मुसलमानों को एक होना ही होगा, तभी आप मोदी को हरा सकते हैं. Listen in. आज के तारीख में हिंदुस्तान में 4-5 पार्टी नहीं, खाली 2 है. वो 2, एक मोदी परिवार, दूसरे गांधी परिवार. आप लोग डिसाइड कर लो, मोदी के परिवार साथ देना है या नहीं तो गांधी के परिवार के साथ देना है. अगर मोदी परिवार के साथ देना है तो आपके 4% जो रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया हुआ है, 4% रिजर्वेशन मोदी जी ने निकालने वाले हैं. एक कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी, देश के पिछड़ों का आरक्षण, देश के दलितों का आरक्षण समाप्त कर कर वो माइनॉरिटी को, मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती. आप चिंता मत करो, भाजपा का एक भी विधायक है, तब तक मुसलमानों को आरक्षण हम नहीं मिलने देंगे. नहीं.
So it, ladies and gentlemen, boils down to just two things. Nation first versus the Muslims first. Nation first versus the minority first, and the Gandhi Parivar versus the Modi Parivar, as you've just heard from Revanth Reddy. Let's quickly open this up with a panel of guests. We'll have Tom Vadakkan, the national spokesperson of the BJP, with us. Raj Gopalan ji is a senior journalist. Good to have you, sir, back on the show. Gaurav Chacha is a national spokesperson of the Samajwadi Party with us. Kushal Mukta ji is the spokesperson for the Congress. Kushal, thank you for joining us today. And we are also waiting for Advocate Susi Ben Shah, who represents the Shiv Sena Shinde faction, to join us in just a moment. But, you know, Tom, I don't think there is anything wrong if the Congress says कि सब मुसलमानों को एक होना होगा, no? Kaushal, because this really explained to us that this is how you want to win elections. Divide the Hindus, Mr. Raj Gopalan, like the Prime Minister has been saying कि एक रहेंगे तो safe रहेंगे. लेकिन कांग्रेस चाहती है कि हिंदूज को बांटो, उसमें सारा मुसलमान का वोट ऐड कर दो. और साथ ही साथ गौरव जी, आपको आज थोड़ी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि रेवंत रेड्डी तो ये भी कह देते हैं कि और कोई पार्टी नहीं है देश में, सिर्फ दो पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस. छोटी मोटी पार्टी को देकर अपना वोट बर्बाद मत करिए, क्योंकि आपका 4% रिजर्वेशन चला जाएगा. तो गौरव जी, अब आपकी और कांग्रेस की दोस्ती कहां तक रहती है, ये आपको भी सोचना पड़ेगा. बट कौशल, व्हाट इज द कंपल्शन? आई मीन, यू एक्सेप्ट द फैक्ट that you are a Muslim driven party. You think about the Muslims. And Maharashtra is a test case for you. Ki Bhajapa wants to unite the Hindus, you want to unite the Muslimans. That's it. फर्स्टली आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि आप जो है इलेक्शन आते ही हिंदू मुसलमान वाला जो जितने भी ये शोज चलेंगे, चाहे वो किसी भी चैनल की बात है, राष्ट्र के अंदर या प्रदेश के अंदर, पर मैं कहना चाहता हूं कि हम मुस्लिम जो है पक्ष की पार्टी नहीं है, हम हिंदुस्तान के संविधान की पक्ष की पार्टी है. आपने सुना ना, रेवंत रेड्डी को सुना ना. देखिए, नहीं 1940 के अंदर अगर गलत बातें बोलेंगे तो मेरा भी जॉब है एज अ जर्नलिस्ट टू चेक यू ऑन फैक्ट्स. नो, the media has not created this story. The media has not created this story. Media has not called Yogi Adityanath आतंकवादी. Revanth Reddy is still your chief minister. He only has said कि 4% reservation चला जाएगा. सुन लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, 1940 के अंदर मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए भाजपा, है ना. और जो है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जो है श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी लिखते हैं कि अंग्रेजों को कि भाई इसको कैसे दबाया जाए, मैं आपको उपाय बताता हूं. ठीक है, देश के अंदर भाजपा जो है जब भी मुस्लिमों का जो है पक्ष की बात आती है, तो जहां जहां भी उन्होंने सबसे पहले, इतिहास आजादी से पहले भी उन्होंने भाजपा ने जो मुस्लिम लीग की सरकारें बनाई है. परंतु हम लोग मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं करते, हम कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट रख के बात करते हैं. राहुल गांधी जी ने वही बोली, आदरणीय खाड़गे जी ने भी वही बात बोली कि कटेंगे तो पटेंगे वाली राजनीति नहीं, डरेंगे तो मरेंगे वाली राजनीति होनी चाहिए. और हम कौन डरेगा और कौन मरेगा, मुझे ये बताइए ना, कौन डरेगा कौन मरेगा? सुन लीजिए, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो शोषित है. सुन लीजिए मेरी बात को, मेरा कहना यह है कि अगर आप लोगों को हिंदू के नाम पे डराने का काम करेंगे, आप जाति के नाम पे डराने का काम करेंगे, तो कांग्रेस उसका विरोध करेगी, क्योंकि कांग्रेस एक पक्ष की जो है ना पार्टी नहीं है. ये पूरे हिंदुस्तान का वो समंदर है जिसमें सारी विचारधाराएं, सारी हमारी भाषाएं, जातियां सब सम्मिलित है. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ऐसे इनके भड़काऊ बयान देने वाले नेता है, चाहे वो हमारे योगी साहब है, चाहे वो अनुराग ठाकुर जी है, कभी बात करते कि एक के बदले जो है ना सर काटेंगे, कभी बात करते कि एक बंदे को कह करके हम 10 सर कटवाएंगे. तो इस प्रकार से हिंदुस्तान की जो नींव है, जो लोकतंत्र की नींव है, वो इसका संविधान है. नहीं, कौशल, अब भाषा पे आएंगे ना तो डिबेट एकदम भटक जाएगी, और डिबेट में बहुत कुछ आ जाएगा. मैं भाषा पर तो जा ही नहीं रही, मैं सिर्फ ये हिंदू वर्सेस मुसलमान पे जा रही हूँ. कौशल, मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग भी अपनी बात रखें. लेकिन एक छोटी सी बात बताइए, अगर आप कास्ट पर डिवाइड करें वो ठीक है, भाजपा लोगों को यूनाइट होने के लिए कहे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वो गलत है, वो डिविसिव हो गया, वो कम्युनलिज्म हो गया. जाति पूछे माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी सदन के अंदर जाति पूछे माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर हम शोषितों को हक देने के लिए कास्ट सेंसिस की बात करें, ताकि प्रत्येक जो एक हमारी जाति का हक, जो शोषित जाति का हक माना जा रहा है इतने लंबे समय से, उस हक को दिलाने के लिए अगर कास्ट सेंसिस की बात हो तो हम जातिवादी. और अगर नहीं ऐसी बात है तो मुझे बताइए, 2011 में जब कर्नाटक में आपकी सरकार ये करती है पूरी एक्सरसाइज, आप वो डेटा नहीं निकालते? अगर आपको वाकई में पिछड़ों का, शोषितों का हक के बारे में सोचना था, आप वो डेटा रिलीज कर देते. आपका भी तो स्टंट है ना. देखिए, बिल्कुल स्टंट नहीं है, हमने कोई सेंसस नहीं रोका. मैं इसको आप पर कहना चाह रहा हूं, ये स्टंट होता तो हमारे राष्ट्रीय नेता जो राहुल गांधी जी है, वो इस बात को जो पूरे देश के अंदर चिल्ला करके नहीं कहते. मैं फिर कहता हूं, कास्ट सेंसस बांटने के लिए नहीं है, शोषितों का हक दिलाने के लिए है. जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक.
अच्छा, और कटेंगे तो बटेंगे डिवाइड करने के लिए, Tom, so you are to be blamed because you want to divide people. They only want to provide for the upliftment and betterment of the marginalized, Tom. So why should you make a hue and cry? A hue and cry. It's the broken record of Rahul Gandhi, which he talked about the caste. The reality is, wants to divide into caste fragmentation. One caste against the other. And if we say that when you divide, you lose out. And that division is what they are talking about. He talks about the constitution, which half the time the constitution which he carries does not have any content, which was distributed in Nagpur. So that much of respect for the constitution. Deepti, let me tell you, they conducted a census by the central government during the UP era. The content was not released. Why? They are doing it in Telangana. You can see the kind of revolt among the backwards, among the scheduled caste, scheduled tribe. They're driving away these people who come and do the census. Now, situation is this. We are talking about unity across the board. This is not about Hindus alone. We are saying unite India. Because unity, you have a threat of regime change. There are leaders from India going out abroad, going according to the Soros script, and want to create sabotage on railways and airways, the kind of sabotage that they planned. Now that is all exposed. Because these are the people, these are the very same people who want to enter through the back door for power. And they will compromise on anything. Now this whole business and this broken record of Rahul Gandhi is essentially to break India. And we are talking about uniting India. Okay. All castes, all communities. Okay, so I think this narrative is further getting narrowed down, Gaurav. We'll also get Advocate Susi Ben. I hope she can hear us and she can hear this conversation as we'll get her into the debate. But Gaurav, देखिए दो तरह की बातें हैं. टॉम ने भी ये साफ कर दिया. एक तरफ वो सारे फोर्सेस हैं जो देश को यूनाइट करना चाहते हैं, कहते हैं कि एक रहिए और तभी हम सेफ रहेंगे. लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा पक्ष है जो देश को बांटने पर तुला हुआ है. अब मुझे बताइए, आपको तो कांग्रेस गिनती में भी नहीं डाल रही है. वो कह रही है बेकार है, छोटी मोटी पार्टी पर वोट करेंगे आप. देखिए, ये तो उन्होंने जो बयान दिया उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है. ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान नहीं है. इंडिया गठबंधन. अरे उनके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं ऑफिशियल बयान नहीं है. उनके मुख्यमंत्री बोलते हैं गौरव. ये भारतीय नहीं, कंगना रनौत भी तो नहीं, कंगना रनौत भी तो भाजपा की सांसद है. उन्होंने बोल दिया कि किसान बिल दोबारा से आ जाएगा. मान लीजिए किसान का बिल दोबारा से आएगा. तो ऐसा नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है. और समाजवादी पार्टी तो जोड़ने में विश्वास रखती है. हमारा तो नारा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे. हम तो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं. 24 के चुनाव की बात कर लें, तब भी हमने सबको जोड़ने का काम किया. पीडीए रणनीति को साथ लेके काम किया. पीडीए को टिकट दी थी, पीडीए से हम लोग को वोट मिला, पीडीए ने हमको जिताया. पीडीए में हमने सबको शामिल किया, जिसमें कि आपको बता दूं मैं, दलित, कुर्मी, पटेल, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, यादव, मुस्लिम, निषाद, बिंद, जाट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिया, राजभर, लोधी, इन सब अच्छा है गौरव, लिस्ट लेकर बैठे हैं लगता है. नीचे देखकर लिस्ट पढ़ रहे हैं. अच्छी बात है, अच्छी बात है. इनका मान सम्मान बढ़ा. देखिए, चुनाव आता है तो नेताओं को ये सारी जातियां याद आ जाती है. मतलब क्या हो गया देश को आगे ले जाना है, देश को पीछे ले जाना है गौरव. तो और ये सब तो छोड़िए. अब मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि सबको एक रहना चाहिए, एक रहना चाहिए देश को. देखिए, देश तो एक ही, हिंदुस्तान एक है हम सबको एक. हम तो कह नहीं रहे. हम तो कह रहे हैं पीडीए के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और भारतीय जनता पार्टी से दुखी अगड़ों पे जो उत्पीड़न हो रहा है, उससे हमको निजात पाने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट देना. जनता को समाजवादी पार्टी की यही रणनीति है. उन लोगों को जो मान सम्मान, जो उनके हक की लड़ाई, जो 90% लोग हैं जो पिछड़े हो चुके हैं, जिनको मान सम्मान नहीं मिल रहा, उनको सम्मान दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी आगे है. अच्छा, अगर सारे मुसलमानों का वोट कांग्रेस के पास चला जाएगा, मिस्टर राजगोपालन, लाइक रेवंत रेड्डी इज ऑल्सो सेइंग कि ऑल मुस्लिम्स नीड टू यूनाइट. I mean, all these regional parties should really get worried, including the SP. I have covered the Congress for 40 years. Even Tom Barakan has not even... No, Mr. Rajgopalan is responding to that, Gaurav. Yes. Go on. Congress has gone to, A.K. Anthony report clearly says don't antagonize Hindus.
A.K. Anthony report should be read by Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge, and even the Congress spokesperson, who has not even studied what A.K. Anthony report after 2014 debacle. Now, Yogi Adityanath has given a befitting reply. He has slapped on the face of Mr. Mallikarjun Kharge politically, because Mallikarjun Kharge said, he was alone. His father told him that, we will run away. His mother was killed. That is why Mr. Yogi Adityanath remembered that Nizam. So now coming to the point, Congress has become a Muslim party. Indian Muslim League will merge with Congress, and Congress will soon become Muslim party because it is antagonizing only the Hindus. What Narendra Modi has been saying is absolutely correct. कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में Mr. Rahul Gandhi can speak irrelevant things, and he blabbers sometimes outside the country. As Tom Barakan just now said, he goes abroad and says Muslim League is a secular party. So that Congress has become totally a minority party. They are against Muslim, they are for Muslim and against Hindus. A.K. Anthony report should be studied by each and every Congress leader. Oh yes, but a lot of these, reports, I'm not sure if the Congress netas, Rajgopalan ji themselves have read this. It's easy to say that committee betha diya, the committee has put forward a report, but clearly the Congress does not go back to that. Before I get in Kaushal to respond to that, I want to see if Susi Ben can still hear us, because I think she's traveling. Susi Ben ji, good evening. Can you hear us? Yeah, I will tell you this, that our Mahayuti Sarkar is for justice and social welfare for all. We don't believe in appeasement politics. We don't believe in, and so that is the reason I say it's justice for all. The fact that the Muslim can demand reservation by the ulemas to the Mr. Nana Patole, and Mr. Nana Patole accepting the same, strikes at the very basis of the constitution, strikes at the basic tenets of the constitution of India. And therefore we completely agree with our Honorable Amit Shah ji that there cannot be a reservation of Muslims. They are any case not minorities. They are more than 20% of the total population. So what are we talking about? But Susi Ben, should you not be worried in case all the minorities really unite behind the Congress? Should you be worried then? Not at all. We are a strong 80%. While we are very, very proud to be Hindus, we do not look down upon any caste, creed or religion. Our basis of progress is sabka saath, sabka vikas or sabka vishwas. And that is the only way that India can grow to the 21st century. The only way Maharashtra can achieve the 1 trillion economy is only when everyone marches together. The kind of debate that we are pursuing right now and the kind of opinion cited by people, I wonder whether we are the modern nation that Narendra Modi ji envisaged, or we are becoming a regressive nation. I just don't understand. And there is nothing wrong. Okay. We unite, we march together. Okay, I'm just losing your audio. I'll request you if you can just be, parked on a side for just about a few minutes, because we want you to participate in this conversation also, Susi Ben. But Kaushal, देखिए बात तो सही उठा रहा है ना, सारा बीजेपी और तमाम जो बाकी महायुति के लोग हैं, अगर आप लोग इतना संविधान पे लोगों को डरा रहे हैं, आरक्षण पे आपने लोगों को डराया, अब कहते हैं ना कि काट की हांडी बार बार नहीं चलती है ना कौशल। अरे आपने 24 के लोकसभा इलेक्शन में भी यही काम किया, फिर से दोबारा लोगों को डरा रहे हैं और मुसलमानों को कह रहे हैं एक साथ हो जाइए। मुझे तो सबसे पहले तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि भाजपा के तो यहाँ तीन या दो जो है ना प्रवक्ता बिठाए हुए हैं अनऑफिशियली, और कांग्रेस की तरफ से मेरे को बिठाया गया है। पर मैं बताना चाहता हूँ आपको, ना तो कांग्रेस किसी एक धर्म का सपोर्ट करती है, ना कांग्रेस ने किसी जाति विशेष की बात की है। ये जो आपके यहाँ पर दूसरे जो जिन्होंने भी बोला, मैं इनका नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, इन्होंने कहा कि भाई जो है निजाम के परिवार ने जो है खारगे जी के परिवार पर हमला किया, इस प्रकार की इन्होंने कोई टिप्पणी की। अच्छा, इनको मुस्लिम लीग का वो हमला तो याद है, इनको निजाम का वो हमला तो याद है, इनको 1940 के अंदर मुस्लिम लीग के साथ जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई वो इन महाशय को याद नहीं है। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, जो आपने यहाँ पर रिस्पेक्टेड जो ऑनरेबल एडवोकेट यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी बात की कि अमित शाह जी ठीक बोल रहे हैं कि भाई मुस्लिमों को आरक्षण देने की हमने बात की है। हमने कभी भी हमारे किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात नहीं की। हम केवल और केवल शोषितों, दलितों और पिछड़े। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? अब देखिए, नहीं, अब मुझे एक बार फिर से रेवंत रेड्डी की वो रिएक्शन चलाना पड़ेगा, टॉम, एंड ही इज ईटिंग इनटू योर टाइम। आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड, बट वी हैव टू कम क्लीन।
रेवंत रेड्डी हैज मेड इट वेरी वेरी क्लियर, कौशल, कि अगर आपने भाजपा को वोट दिया, अगर आपने मोदी को और स्ट्रांग बनाया, आपको जो 4% आरक्षण कांग्रेस ने दिया है वो चला जाएगा। ये रेवंत रेड्डी बोलते हैं। आई वांट टू चेक विद आवर टीम इफ वी कैन क्विकली जस्ट प्ले आउट दैट वन रिएक्शन। कौशल, उसके बाद आप माफी मांगेंगे? बिल्कुल, मैं नहीं मांगूंगा माफी। गौरव जी ने बिल्कुल क्लियरली कहा है, जिस प्रकार से भाजपा कंगना रनौत के बयान को और किसी भी इनके पर्सनल जो है व्यक्ति बयान देता है वहां से पीठ पीछे करती है, मैं कहना चाहता हूं इस पर से अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आपके एक सिटिंग मुख्यमंत्री है ना, या तो आप बोलिए कि गलत बयान दिया है, गलत बयान दिया, उनके खिलाफ एक्शन होगा। सीधा बोलते हैं कि सब मुसलमानों को एक होना पड़ेगा। अपने भाइयों को जाकर महाराष्ट्र में बताइए कि भाजपा के लिए वोट नहीं दिया जा सकता। भाजपा के खिलाफ देश को एक होना पड़ेगा। इन्होंने सांप्रदायिक आधार पर देश को बांट दिया है। आज देश की इकोनॉमी पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन की जा रही है, बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन की जा रही है। अरे कौन कर रहा है ये कंपैरिजन? क्या बात? अब देखिए, इतना नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो घृणा है आपकी, ठीक है, आपके ओपोनेंट है, ठीक है, लेकिन आप देश को क्यों डुबाने पर तुले हुए हैं? गौरव, थोड़ी तो मदद करिए। वो आपको कहते हैं छोटी मोटी पार्टी है, बट मदद कर दीजिए कांग्रेस की। देखिए मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी टीडीपी, उनके नेता चंद्रबाबू नायडू जी, उन्होंने खुले मन से कहा कि मुसलमानों को मैं रिजर्वेशन देता हूं और दूंगा, और दे रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी उनसे गठबंधन तोड़ेगी? क्या अमित शाह जी गठबंधन तोड़ेंगे? तो ये गठबंधन इनका स्वार्थ का गठबंधन है, राजनीति स्वार्थी कर रहे हैं, सिर्फ कुर्सी बचाने की राजनीति। बीजेपी का टॉम पर आरोप लगाया। बिफोर वी क्लोज द शो, 10 सेकंड्स टॉम टू रिस्पॉन्ड। 10 सेकंड्स। मैंने कभी कांग्रेस के स्पोक्समैन का ये हालत कभी देखा नहीं है। इतिहास ये है कि मैं 20 साल से कांग्रेस को देखता हूं और वहां का सेक्रेटरी भी था। कभी ऐसा एक स्पोक्समैन को मैंने देखा नहीं है जो अपना होमवर्क करने के बिना नेशनल मीडिया में आकर बैठे। सच्चाई तो ये है, एक तो एंटनी कमेटी रिपोर्ट सब लीडर्स जानते हैं, और उसके बाद कमेटी बैठा था, उस पर कुछ नहीं हुआ। अभी जो बात कर रहे हैं कास्ट इश्यूज पर, यही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो रिजर्वेशंस के खिलाफ थे। उसके बाद इंदिरा जी थे, रिजर्वेशंस के खिलाफ थे। राहुल गांधी विदेश में जाकर ये कहते हैं कि मैं रिजर्वेशन बंद करो। और मैं ये पूछने चाहता हूं इन सज्जनों से कि भाई आपको जानकारी है कि मुसलमानों में कितना कास्ट है? 30 से ऊपर कास्ट है मुसलमानों में। क्या आप उनको भी बंटवारा करोगे? चलिए ना, Tom has given some food of thought, some good of homework for Gaurav. Next time he's on the show, he'll get that list also. Rajgopalan ji, apologies, completely out of time, but we'll see nation first or Muslim first, what happens on these 288 seats for the moment. Thank you to Susi Ben and all gentlemen for joining us. We quickly head into a break.